ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے ایسے ملک کی جس کا نام بھی شاید کئی لوگوں نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا۔ یہ ایسا ملک ہے جہاں 900 سے زائد ندیاں اور دریا ہیں، لیکن سمندر اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتا، اور یہاں شادی کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے جب تک یہ ٹیسٹ کلیئر نہیں کر لیتے۔ چلیے جانتے ہیں اس ملک کے مزید دلچسپ حقائق۔ تاجکستان، جس کا آفیشیل نیم جمہوریہ تاجکستان ہے، 900 سے زائد دریاؤں پر مشتمل وسط ایشیا کا ایک خشکی میں گھرا ہوا لینڈ لاک کنٹری ہے۔ اس کا 93% رقبہ پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ اس کی سرحدیں جنوب میں افغانستان، مغرب میں ازبکستان، شمال میں کرغزستان اور مشرق میں چین سے ملتی ہیں۔ یہ تاجک نسل کے باشندوں کا ملک ہے جن کی ثقافتی اور تاریخی جڑیں ایران اور افغانستان میں پیوست ہیں، اور یہ فارسی سے انتہائی قربت رکھنے والی زبان تاجک بولتے ہیں۔ سامانی سلطنت کا گہوارہ رہنے والی یہ سرزمین 20ویں صدی میں سوویت اتحاد کی باضابطہ جمہوریہ رہی، جسے تاجک سوویت اشتراکی جمہوریہ کہا جاتا ہے۔ وسط ایشیا کا سب سے بڑا دریا دریائے آمو اسی ملک میں سے گزرتا ہے۔ سوویت اتحاد کی افغانستان میں شکست کے بعد رشیا کئی حصوں میں بٹ گیا۔ اس کے نتیجے میں تاجکستان کو بھی آزادی ملی۔ آزادی ملنے کے بعد تاجکستان 1992 سے 1997 تک زبردست خانہ جنگی کا شکار رہا۔ خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد سیاسی استحکام، غیر ملکی امداد اور ملک کے دو بڑے قدرتی ذرائع کپاس اور ایلومینیم نے ملکی معیشت کی بہتری میں اہم کردار ادا کیا۔ تاجکستان کا یہ نام تاجک اور ستان سے مل کر بنا ہے، یعنی تاجکوں کا وطن، جیسا کہ ایران اور اس سے ملحقہ بیشتر ممالک کے ناموں کے ساتھ استان لگتا ہے، جیسے پاکستان، افغانستان، کرغزستان وغیرہ۔ دوشنبے ملک کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ 7.5 لاکھ کے قریب آبادی والا یہ شہر دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ تاجک زبان میں دوشنبے کے معنی پیر کے ہیں، اور دوشنبہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا یہ نام ماضی میں لگنے والے سوموار بازار کی وجہ سے مشہور ہوا۔ قطبین کے بعد 700 مربع کلومیٹر پر محیط فیڈچینکو گلیشیئر دنیا کا دوسرا بڑا گلیشیئر بھی تاجکستان میں واقع ہے۔ یہ سرزمین جہاں یہ اب تاجکستان واقع ہے، 4000 سال قبل مسیح سے مستقل آباد ہے۔ یہ علاقہ تاریخ میں مختلف سلطنتوں کے زیر نگیں رہا۔ قبل از مسیح میں یہ علاقہ باختر کی سلطنت کا حصہ تھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں اسلام یہاں بھی داخل ہوا۔ عباسی دور کے آخر میں جب سلطنت اسلامیہ کے مختلف حصوں میں نئی ریاستیں وجود میں آئیں تو اولین ریاستوں میں سے ایک ریاست سامانی سلطنت یہاں وجود میں آئی تھی، جس نے سمرقند اور بخارا کے شہر بنائے جو تاجکوں کے ثقافتی مراکز بنے۔ بعد ازاں منگولوں نے وسط ایشیا پر قبضہ کیا۔ سلطنت روس کا حصہ بننے سے پہلے یہ علاقہ امارت بخارا میں شامل تھا۔ 19ویں صدی میں سلطنت روس نے وسط ایشیا پر اپنے پنجے گاڑنا شروع کیے اور تاجکستان پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1917 میں زار روس کی سلطنت کے خاتمے کے بعد وسط ایشیا میں پسماچی تحریک کا آغاز ہوا، جنہوں نے آزادی کے لیے سرخ افواج کے خلاف زبردست مزاحمت کی، لیکن اس تحریک کو کچل دیا گیا اور یہ علاقہ سوویت اتحاد کا حصہ بن گیا۔ اشتراکی دور میں یہاں مذہب بالخصوص اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا۔ مساجد و عبادت گاہوں کو بند کر دیا گیا۔ ماسکو نے وسط ایشیا کی ریاستوں میں سب سے کم تاجکستان پر توجہ دی، اور یہ طرز زندگی، تعلیم اور صنعت میں وسط ایشیا کی تمام ریاستوں میں سب سے پیچھے رہی۔ 1991 میں سوویت اتحاد ٹوٹ گیا اور تاجکستان نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ آزادی کے فوراً بعد ملک بدترین خانہ جنگی کا شکار ہوا، جس میں مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے قبائل آمنے سامنے ہو گئے۔ اس عہد میں غیر مسلم آبادی، جو زیادہ تر روسیوں اور یہودیوں پر مشتمل تھی، بڑھتی ہوئی غربت اور مغرب میں بہتر اقتصادی مواقع ملنے کے باعث ملک سے فرار ہو گئی۔ 1992 میں امام علی رحمانوف برسر اقتدار آئے، اور یہ پچھلے 27 سال سے اب تک ملک کے حکمران ہیں۔ تاجکستان ٹائم کے لحاظ سے پاکستان کے ساتھ ہے، لیکن انڈیا سے آدھا گھنٹہ پیچھے ہے۔ یہاں شادیوں کی دلچسپ روایات ہیں۔ یہاں شادی سے پہلے حکومت سے اجازت نامہ لینا ضروری ہے۔
खास तौर पर कज़न मैरिज की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए पहले टेस्ट करवाना ज़रूरी है और लड़की और लड़के की मुकम्मल तहकीक की जाती है आया वो दोनों इस बंधन को निभाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मुल्क में तलाक की शरह बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसकी बड़ी वजह लड़के शादी के बाद रशिया चले जाते हैं, वहाँ बेराह रवी का शिकार होकर वापस नहीं आते। इस वजह से अब हुकूमती इजाज़तनामा ज़रूरी कर दिया गया है और अमूमी तौर पर शादियाँ 20 साल की उम्र में की जाती हैं, जो कई रोज़ तक जारी रहती हैं और शादी में बाजे इतने बड़े होते हैं लगता है ट्रक का सलेंसर ही निकाल कर लाए हैं। और हर शख्स की कोशिश होती है वो भी डांस पर परफॉर्मेंस दिखाने से अगर रह गया तो शायद अगली रात तक जिंदा बचूंगा कि नहीं। इसलिए हर कोई लेज़गिंका डांस का दीवाना है और मुल्क में एक कानून के तहत कोई आदमी किसी भी तकरीब मसलन शादी में अपनी आमदन के मुताबिक ही अफराद को मदऊ कर सकता है। इसका मकसद लोगों को दिवालिया होने से बचाना है। अगर इसके जोग्राफिया को देखें तो ये ऐसे खित्ते में वाक़ है जहां बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को एक तंग पट्टी अलहदा करती है, इसे वाक़ खान की पट्टी कहा जाता है और ये अफ़गानिस्तान का हिस्सा है। इसका कुल रकबा 1,44,100 स्क्वायर किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से वस्त एशिया का सबसे छोटा और दुनिया में 97 नंबर पर शुमार होने वाला मुल्क है। सिलसिला कोह पामीर इस मुल्क के पेशतर हिस्से पर फैला हुआ है और मुल्क का 50% से ज़ायद का इलाका सतह समुंदर से 3000 मीटर यानी तकरीबन 10,000 फीट से ऊंचा है। और वादी फरगाना में एशिया और यूरोप के बेहतरीन घोड़े पाए जाते हैं। यूरोपी बाशिंदे भी यहीं से आला नस्ल के घोड़े खरीदने आते हैं और इन्हीं वादियों से दरियाए आमू निकलता है और यहाँ बारिशें भी ज़्यादा होती हैं। रशियन फौजियों का दावा है उन्होंने पामीर की चोटियों पर येटी या स्नोमैन को देखा है। कोह इस्माइल सामानी सिलसिला कोह पामीर में वाक़ ताजिकिस्तान की सबसे बुलंद चोटी है और ये सतह समुंदर से 7,495 मीटर बुलंद है। मुल्की दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 42 डिग्री और कम से कम -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मुल्क में नई कानून साजी के तहत रवायती लिबास पहनने और कौमी सकाफत से जुड़े रहने का पाबंद बनाते हुए इस्लामी लिबास पहनने की ममानत कर दी गई है। ताजिकिस्तान को खित्तों या सूबों में तकसीम किया गया है जिन्हें वलायत कहा जाता है। वादी फरगाना में वाक़े वर्रोख वो खित्ता है जहाँ 3 ममालिक किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान आपस में मिलते हैं। ताजिकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर एक जमहूरिया है जहां सदर और पार्लिमान मुंतखब करने के लिए इंतखाबात मुनक्कद होते हैं। और नाजरीन दिलचस्प बात यह है यहां आखिरी बार इंतखाबात 2005 में हुए और गुज़श्ता तमाम इंतखाबात की तरह इन इंतखाबात को बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन ने गैर मुनसिफाना करार दिया। मोहतरम नाजरीन ये भी बात दिलचस्पी से खाली नहीं। ताजिकिस्तान में बड़ी आईब्रो को पसंद किया जाता है जिनके बरबट्टे छोटे होते हैं, वो बाकायदा इसे पेंट करते हैं ताकि जाज़बे नज़र आ सके। मुल्क की सिकंदर कुल लेक का नाम सिकंदर आज़म के नाम से रखा गया है। मुल्क का डायलिंग कोड +992 है और इंटरनेट डोमेन नेम .tj है। मुल्क में ड्राइविंग राइट साइड है यानी गाड़ियां दाईं तरफ चलती हैं और स्टीयरिंग लेफ्ट हैंड होता है। अगर इसकी मईशत की बात की जाए तो आलमी बैंक के अदादो शुमार के मुताबिक 2000 से 2004 के दरमियान ताजिकिस्तान के GDP में 9.6% सालाना के हिसाब से इजाफा हो रहा है और इसका सालाना GDP $30.55 बिलियन है और इसकी करेंसी ताजिकिस्तानी सोमोनी है जो इंडियन 7.25 रुपयों और पाकिस्तानी 16.80 रुपयों के बराबर है। और यहाँ फ़िकस आमदनी $3200 यानी पाकिस्तानी 5,08,460 रुपयों और इंडियन 2,19,890 रुपयों के मसावी बनते हैं। नुरैक डैम दुनिया का सबसे ऊंचा डैम है जो हाथ से बनाया गया है। ताजिकिस्तान की मईशत में आमदनी के बुनियादी ज़राए एल्युमिनियम की पैदावार, कपास की काश्त। मुल्क के GDP का तकरीबन 47% हिस्सा बैरून मुल्क से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र से आता है और मुल्क के 90% बाशिंदे रूस में मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। नाजरीन आपको बताते चलें ताजिकिस्तान के सदर की अपने बेटे की शादी में डांस की वीडियो किसी ने अपलोड कर दी तो इसने मुल्क में YouTube को ही ब्लॉक कर दिया। ताजिकिस्तान की आबादी जुलाई 2018 के एक अंदाजे के मुताबिक
92,75,900 अफराद हैं, जो दुनिया में आबादी के लिहाज से 96 नंबर पर शुमार होती है, और इसके फी किलोमीटर पर 48 अफराद आबाद हैं, जो दुनिया में कम तरीन आबादी वाले ममालिक में 155वें नंबर पर शुमार होती है। मुल्क की आबादी में सबसे बड़ा नस्ली ग्रोथ ताजिक है, जो 84% है, जबकि उज़्बेक बाशिंदों की बड़ी तादाद भी ताजिकिस्तान में रहाइश पजीर है। रूसियों की भी थोड़ी सी आबादी यहाँ रहती है, जो हिजरत के बायस कम होती जा रही है। मुल्क की बाज़ाब्ता ज़बान ताजिक है, जबकि कारोबारी और हुकूमती मामलात में रूसी ज़बान भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। मुल्क में 94 लाख अफराद मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और 20 लाख के करीब अफराद इंटरनेट का इस्तेमाल जानते हैं। मुल्क में 17% गुर्बत के बावजूद ताजिकिस्तान में ख्वानगी की शरह बहुत ज़्यादा है और तकरीबन 98% आबादी लिखने पढ़ने की सलाहियत रखती है। ज़ोरास्ट्रियन मज़हब के मानने वालों का आज भी इनकी ज़िंदगियों पर गहरा असर है। बहुत से लोग इस बात का यकीन करते हैं कि सुपर नेचुरल फोर्सेस इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासर करती हैं और वो अपने आप को बुराई से बचाने के लिए तवीज़ गंडे पहनते हैं। मुल्क की अक्सर आबादी इस्लाम की पैरवी करती है, जिनमें 93% सुन्नी जबकि शिया 3% हैं। यहाँ की औसत उम्र 68.4 साल है। सोवियत इत्तेहाद दौर के दौरान मुल्क में माशरे को मजहब बेजार करने की कोशिशों को बड़ी हद तक नाकामी मिली और आज़ादी के बाद मजहबी रुझान में नुमाया इजाफा हुआ है। मुल्क का दूसरा बड़ा मजहब मसीहियत है। 90 की दहाई की इब्तिदा में इनकी तादाद कम हुई। बुखारी यहूदी दूसरी सदी कबल मसीह से इस इलाके में रहते हैं, ताहम आज इनकी तादाद चंद सौ ही है। मुल्क में ट्रैफिक का निज़ाम मौजूद है। मुल्क में ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल 24 एयरपोर्ट और 2 एयरलाइन, ताजिक एयर और समून एयर और इनके 10 एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड हैं। मुल्क में तकरीबन 10 लाख के करीब अफराद बाई एयर सफ़र करते हैं और पूरा मुल्क 680 किलोमीटर रेलवे के निज़ाम की वजह से रशिया की दूसरी रियासतों के साथ जुड़ा हुआ है। ताजिकिस्तान में वीज़ा पॉलिसी बहुत आसान है। अगर आप आर्मीनिया, अज़रबैजान, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया के शहरी हैं तो बगैर वीज़े के जा सकते हैं और बाकी दीगर ममालिक के शहरी घर बैठे ही ई वीज़ा के ज़रिए आप भी जा सकते हैं और आप ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर भी और तमाम एयरपोर्ट्स पर भी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। याद रहे, जाने से पहले अपनी ऑनलाइन किसी भी होटल की बुकिंग कर लेना बेहतर रहता है। और इतवार के दिन दोशंबे में कारों की मंडी लगती है, जहां से सस्ती तरीन गाड़ियों की खरीदो फरोख्त होती है। और वोडका रेस्की शराब यहाँ की सबसे मशहूर ड्रिंक है और यहाँ के कारपेट दुनिया में अपनी अलग पहचान रखते हैं। ताजिक सब्ज कहवे के शदाई हैं और दिन में 3 मरतबा कहवा पीते हैं और फलों का रस हर घर में मिलेगा। यहाँ पुलाव सबसे मशहूर डिश है, जो मटन, बीफ और गाजर के साथ बनाई जाती है और ओश के त्यौहार पर लोग अपनी गुंजाइश के मुताबिक पुलाव बना कर लाते हैं और हर किसी के लिए फ्री होता है। और इसके अलावा कोरोतोप भी शौक से खाई जाती है, जिसे आप सुरीद भी कह सकते हैं। समोसा, सीख कबाब, तस्बीरा सूप, ओगरो सूप, जिज़बिज़, दोलमा, मांटो, शोरबो, खुश्क मेवा जात और कई अक़साम के दिल फरेब नक्शो नगार वाले नान, चपाती और कुलचे खाए जाते हैं और आपको मार्केट में ज़्यादातर ख़वातीन बेचती नज़र आती हैं। और याद रहे, यहाँ मटन काफ़ी सस्ता है और इनकी हर डिश का लाजमी जुज़्व भी। और मुल्क में $20 से $70 तक रूम एक रात के लिए मिल जाता है और अगर आप वहाँ के मकामी रहायशियों के गेस्ट हाउसेज में रहें तो मज़ीद सस्ता पड़ता है। यहाँ के लोग नहायत मिलनसार और मोहब्बत करने वाले हैं। आपको रेड कारपेट प्रोटोकॉल तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको खुले दिल के लोग ज़रूर मिलेंगे। याद रखें, अगर आप ईरान या अफ़गानिस्तान के रास्ते दाखिल हों तो आपको कड़ी नज़र से देखा जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये सैर कैसी लगी? वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।